Hello student, welcome again. Student, we are going to see the chapter green chemistry and the nanochemistry, and in this part we are going to see about the nanochemistry, which is the 16th chapter and is the last chapter of our textbook. Okay, students, the today's science era, the nanotechnology is the very important word. Okay, because in our day to day life different thing we use, that is we use the uh, clothes or the sunglasses or the DVD, computer, CD players, and all these things. They in all these things the nanotechnology is used. That is the nano technology is used. Also, in the different medicinal field, the nanotechnology is used, and therefore this nanotechnology becomes very important in our day to day life. Now we will see what is the nanoscience. We will see what is the nanoscience. Nanoscience is the study of phenomena and manipulation of materials at atomic molecules and macromolecular scale. मीन्स इसका मतलब है स्टडिंग नैनो मटेरियल्स, स्टडिंग नैनो मटेरियल्स, यानी कि नैनो मटेरियल यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट नैनो पार्टिकल्स है डिफरेंट डिफरेंट साइज के, दैट इज़ द नैनो मटेरियल. नैनो साइंस मीन्स द स्टडी ऑफ नैनो मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज. ओके, एंड देयर प्रॉपर्टीज. तो नैनो साइंस क्या है? Actually, the definition is like this, that the study of phenomena and manipulation of materials at atomic, molecular and macromolecular scale. ओके, मीन्स जो हम प्रिपेयर करते हैं नैनो मटेरियल, उसका स्टडी करना और उसकी प्रॉपर्टीज देखना, दैट इज़ द नैनो साइंस. ओके, नाउ विल गो टुवर्ड्स द मूव टुवर्ड्स द नैनो टेक्नोलॉजी. ओके, तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? तो नैनो टेक्नोलॉजी इज़ द डिज़ाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन, applications of structures, device and system by controlling shape, size at nanometer scale. मीन्स इसका मतलब सिंपली ऐसा है कि जो भी हम नैनो मटेरियल प्रिपेयर करके, नैनो मटेरियल यूज़ करके बाय यूजिंग द मटेरियल, मीन्स बाय यूजिंग material and studying their properties. तो उनका प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करने के बाद उसको अप्लाई करना. ओके, इट इज़ द एप्लीकेशन of these nano material or the nano structures to design the new material, or to design the or we can say that the reshape of the word. तो जो नैनो मटेरियल है, यानी कि इसका मतलब ऐसा है नैनो टेक्नोलॉजी का कि जो design, characterization, production means we can produce the nano material of different उसके प्रोडक्शन करने के बाद we have to see the characterization of these nano materials, means we have to see their different properties, and then these properties or this nano material can be applied or for in the different systems and the devices which दो उसका शेप भी वहाँ पे नैनो पार्टिकल्स का और साइज़ भी वहाँ पे कंसिडर होता है, और वो साइज़ जो रहता है वो नैनोमीटर स्केल में रहता है. तो नैनो साइंस मीन्स क्या? इट इज़ द स्टडिंग ऑफ नैनो मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, बट द नैनो टेक्नोलॉजी इज डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ नैनो मटेरियल टू see their properties, and after that this material could be applied to the in the different structural devices
so that new things can be prepared very nicely. That is the one can reshape the world with the help of this nanotechnology. Okay, now what is, why nano, why the nanotechnology use, why the nano? तो nano का मतलब जो है, nano means इट इज़ अ ग्रीक वर्ड. ओके, नैनो एक ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब है वेरी स्मॉल साइज और द डॉर्फ. बट द नैनो इज़ रियली अ वेरी वेरी स्मॉल. तो नैनोमीटर स्केल क्या है, व्हाट इज़ द नैनोमीटर स्केल? तो नैनोमीटर स्केल का जो है नैनो पार्टिकल्स या कोई भी नैनो मटेरियल रहेगा, हम उसको नैनो कब बोलेंगे? जब उसका जो साइज़ है इट इज़ बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर. जब भी कोई भी मटेरियल का साइज़ 1 to 100 के बीच में होगा, नैनोमीटर. ओके, 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में होगा तो उसको हम नैनो मटेरियल बोलेंगे या फिर नैनो पार्टिकल्स हम उसको बोलेंगे. तो व्हाट इज़ 1 नैनोमीटर? 1 नैनोमीटर कितना आता है? तो कोई भी 1 बिलियन यानी कि 1, इट इज़ द 1 बिलियन ऑफ अ मीटर. हमने यदि एक मीटर कुछ भी मटेरियल ले लिया और उसके बिलियन नंबर ऑफ हमने डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े बना दिए, उसके पार्ट्स बना दिए, तो इट बिकम्स अ 1 बिकम्स अ 1 नैनोमीटर. दैट इज़ 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 बिलियन of a meter. Okay, or we can say that it is 1 nanometer is equal to 1 into 10 raised to minus 9 मीटर. यानी कि कौन से भी एक मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट रहेगा तो हम उसको बोलेंगे दैट इज़ 1 नैनोमीटर. ओके, तो नैनोमीटर, व्हाई द नैनो इज़ रिक्वायर्ड, व्हाई द नैनो टेक्नोलॉजी इज़ देयर? और if we consider about the properties of the nanoparticles or the nanomaterial, then as the size changes, okay, as the size changes, the properties also changes, the properties also change. because हम आजू बाजू में जो भी हमारे मटेरियल्स दिखते हैं, सब दिखाई देते हैं हमें, all these materials are the bulky materials. Okay, all these materials are bulky materials and their size is different, their shape is different, but and again their these materials having the properties are also different. But if we consider about this material, same material in the nanoscale, in the nanoscale, then in nanoscale the property changes, all the property changes, properties get changed in the नैनो स्केल. तो नैनो स्केल में इस सब की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो वो अलग अलग प्रॉपर्टी चेंज होती है, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उनकी थर्मल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ऑल द प्रॉपर्टीज़ गेट चेंज एट द नैनो स्केल. तो नैनो स्केल में सब प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. तो इसीलिए वो इट कैन बी वेरी, इट बिकम्स वेरी यूजफुल. देयरफॉर दैट्स व्हाई द नैनो इज रिक्वायर्ड, दैट व्हाई द नैनो इज रिक्वायर्ड. तो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ द नैनो मटेरियल. ओके, तो नैनो मटेरियल क्या है, व्हाट इज़ द नैनो मटेरियल? तो नैनो मटेरियल इज क्या है, इट इज़ द material whose structural component should have at least one dimension in nanoscale. That is, nanoscale means कितना होगा, हमने पहले देख लिया है, राइट? इट इज़ 1 to 100 नैनोमीटर. इन बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर रहा तो मटेरियल को हम बोलेंगे नैनो मटेरियल. तो फिर ये मटेरियल क्या है, इसमें और एक है, इट इज़ द मटेरियल हु स्ट्रक्चरल कंपोनेंट शुड हैव एटलीस्ट वन डायमेंशन इन द नैनो स्केल. जो भी हम कुछ चीज़ देखते हैं वो हमेशा इन द
थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में देखते हैं, तो उसमें से एक भी डायमेंशन नैनो स्केल में रहा तो वी कैन से दैट दैट इज़ द नैनो मटेरियल। कौन सा भी एक डायमेंशन या फिर दो डायमेंशन नैनो स्केल में रहे उसके, तो फिर भी हम उसको नैनो मटेरियल बोलेंगे। थ्री डायमेंशन उसके नैनो स्केल में होंगे तो हम उसको भी नैनो मटेरियल ही बोलेंगे। ओके, दस द नैनो मटेरियल इज द मटेरियल हुज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट शुड हैव एटलीस्ट one dimension in the nanoscale, that is it should be in between 1 to 100 nanometer। ओके, तो नैनो मटेरियल्स जो है these are the larger than single atom। okay, nano material is larger than single atom but it is smaller than bacteria or the cells। जो भी नैनो मटेरियल है वो एक सिंगल एटम से बड़ा है। ओके, इट इज़ लार्जर देन द एटम ऑफ एन एनी एलिमेंट but it is smaller than the bacteria or the cells, right? Now the these nanomaterials may be nanotube, okay, nanotube, or it may be nanoparticle, okay, now it may be nanowires, or it may be nano sheets। Thus these are different nano materials are there according to their dimension। it is according to their dimensions means इसमें कौन सा कितने डायमेंशन नैनो स्केल में है, कितने डायमेंशंस उसके नैनो स्केल में है, उसके ऊपर ये सब मटेरियल का जो है डिफरेंट वो डिपेंड करता है। तो जो नैनो स्ट्रक्चर्स है, तो नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स मे बी लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और it may be inorganic molecules or it may be metallic or the semiconductor particles। तो ये जो नैनो मटेरियल डिफरेंट तो रहते ही है, इसमें नैनो ट्यूब्स है, नैनो पार्टिकल्स है, नैनो वायर्स है, नैनो शीट्स है। तो ये जो सब मटेरियल है तो फिर भी ये अलग जो नैनो स्ट्रक्चर्स है डिफरेंट, इट मे बी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इट मे बी सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स और इट मे बी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये जो नैनो मटेरियल जो है वो जो है दिस मे बी द 0 और 1 और 2 डायमेंशनल नैनो स्केल सिस्टम, यानी कि कोई नैनो मटेरियल 0 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स रहेंगे, कोई नैनो मटेरियल 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स रहेंगे, कोई मटेरियल 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स रहेंगे। तो नाउ वी विल सी द डिफरेंट नैनो मटेरियल्स, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द 0 डायमेंशनल nano structure। okay, we will see the 0 dimensional nano structures। तो 0 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज़ द 0 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर? तो 0 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर it is a structure, 0 dimensional nanostructure is a structure in which all 3 dimensions are in nanoscale। all 3 dimensions are in nanoscale। ओके, इसके ये जो मटेरियल है इसके जो सब के सब डायमेंशंस है, ऑल 3 डायमेंशंस, जो सब तीनों भी डायमेंशंस है वो नैनो स्केल में रहेंगे। सपोज हियर वी विल कंसिडर द 3 dimensional structure। suppose this is x axis, y axis and this is the suppose this is the z axis। okay, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी क्यूब है, ये एनी क्यूब, देन इट इज़ this cube is okay,
we'll see the again we will see this in the proper way. Okay, suppose this is the x axis, this is the y axis and this is the z axis. तो ये जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर है उसके जो पूरे के सब जो डायमेंशंस है, ऑल दिस डायमेंशंस, यानी कि जो भी तीनों डायमेंशंस है इसके 1 2 एंड 3, ऑल 3 डायमेंशंस आर इन द नैनो स्केल। यानी कि जो सब ये भी डायमेंशन नैनो स्केल में रहेगा, ए भी डायमेंशन नैनो स्केल में रहेगा और ए भी डायमेंशन नैनो स्केल में रहेगा। मीन्स दिस वन एंड दिस वन, ऑल द डायमेंशंस, ऑल दिस 3 डायमेंशंस आर इन द नैनो स्केल में। तो सच टाइप ऑफ मटेरियल्स आर नोन एज द 0 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स, क्योंकि उनका जो डायमेंशंस रहता है बहुत ही छोटा रहता है, उसका ज़ीरो, इसलिए उसको 0 डायमेंशन बन जाता है। तो जो इसका एग्जाम्पल जो है इसका ये है वो नैनो पार्टिकल। जो नैनो पार्टिकल्स जो रहते हैं वो सब के सब नैनो 0 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स, उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो 0 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर रहता है। तो अभी हम देखेंगे सेकेंड वन, द 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स। ओके, 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स। अभी हमने 0 में क्या देखा है, 0 डायमेंशन में हमने देखा है कि सब के सब जो तीनों भी डायमेंशंस है, ऑल द 3 डायमेंशंस आर इन द नैनो स्केल, इसलिए वो 0 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया। उसका हम उसका कौन सा भी डायमेंशन नहीं देख पाते हैं, तो वो हो गया 0 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स। ओके, तो अभी 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर इन विच 2 डायमेंशंस आर इन नैनो स्केल। इन दिस द 2 डायमेंशंस आर इन नैनो स्केल। यानी कि कौन सा भी हमने मटेरियल लिया उसके 2 डायमेंशंस नैनो स्केल में रहे। ओके, उसके 2 डायमेंशंस नैनो स्केल में रहे तो वो हो जाए, और उसका एक डायमेंशन नैनो स्केल नहीं है, 1 डायमेंशन इज नॉट इन द नैनो स्केल। उसका जो 1 डायमेंशन है नॉन नैनो स्केल में नहीं है, इसीलिए वो 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स हो गया। मीन्स उसका हम 1 डायमेंशन देख सकते हैं बट उसके हम अदर 2 डायमेंशंस नहीं देख पाते, इसीलिए इट बिकम्स द दैट इज़ द 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स। मीन्स उसका अभी जो हमारा जो अभी यहाँ पे हम देख लेंगे जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। तो इसमें एक डायमेंशन तुम्हारा आपका नैनो स्ट्रक्चर में नैनो स्केल में रहेगा, ये एक डायमेंशन नैनो स्केल में रहेगा, बट दिस डायमेंशन विल नॉट, द थर्ड 1 डायमेंशन विल नॉट बी इन द नैनो scale. Therefore, it becomes the 1 dimensional nanostructure. Therefore, it will become a 1 dimensional nanostructure. Means उसमें हम एक 1 डायमेंशन देख सकते हैं बट वी कैन नॉट सी द अदर 2 डायमेंशन बिकॉज दिज आर इन द नैनो स्केल। ओके, तो अभी इसका हमने एग्जाम्पल देख लिया, तो उसका जो एग्जाम्पल है 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स का, उसमें है नैनो वायर्स और द नैनो रॉड्स। नैनो वायर्स और नैनो रॉड जो है वो आते हैं 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि उसके जो 2 डायमेंशंस है वो नैनो स्केल में रहते कोई भी वायर के, लेकिन वी कैन सी ओनली द 1 डायमेंशन, उसका हम देख सकते हैं, इसलिए इट बिकम्स द 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर स्केल। नाउ विल मूव टूवर्ड्स द 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स। 2
डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स। ये जो 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स है, अभी हमने देख लिया है कि जब भी ये भी 3D कोई भी मटेरियल है उसके डिफरेंट 3 एक्सेस है, तो वो डिफरेंट 3 एक्सेस में जिस वन डायमेंशन इज इन द नैनो स्केल। मीन्स 3D में से ओनली वन डायमेंशन इज इन द नैनो स्केल। तो सपोज हम यहाँ पे करेंगे कि जेड एक्सिस जो है वो स्ट्रक्चर का, तो वो एक डायमेंशन उसका नैनो स्केल में होगा, और ये जो दूसरे डायमेंशन है वो नैनो स्केल में नहीं रहेंगे। ओनली वन dimension is in the nanoscale, or and therefore we can see other 2 dimension. Okay, we can see other these 2 dimensions, therefore it becomes a 2 dimensional nanostructure। nanostructure है लेकिन वो 2 dimensional nanostructure है जिसमें हम 2 dimensions प्रॉपरली देख सकते हैं, और एक डायमेंशन हम उसको देख नहीं सकते बिकॉज इट इज़ इन द नैनो स्केल। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम कौन सा भी थिन फिल्म देख लिया हमने, थिन फिल्म, एकदम थिन फिल्म। तो एक जो थिन फिल्म रहता है उसका हम ओनली वी कैन सी द दैट इज़ द इन केस ऑफ वन जो थिन फिल्म रहता है ऊपर का एकदम कोटिंग जैसा, तो वो वन डायमेंशन रहता है उसका, तो वो इट बिकम्स अ वन डायमेंशनल, इट बिकम्स द 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स। यानी कि उसके हम 2 डायमेंशंस देख सकते हैं, लेकिन जो कोटिंग रहता है, थिन फिल्म रहती है, दैट वी कैन नॉट सी बिकॉज इट इज़ इन द नैनो स्केल, एंड देयरफॉर thus there are different different dimensional nano systems or the nano structures are there, that is 0, 1 and the 2 dimensional। तो 0 डायमेंशन में क्या होता है, ऑल द 3 डायमेंशंस आर इन द नैनो स्केल, देयरफॉर वो बहुत ही उसका कौन सा भी डायमेंशन हम देख नहीं सकते। जो नैनो पार्टिकल्स है दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस 0 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स। एंड 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स में क्या है कि उसके जो 2 डायमेंशंस आर इन द नैनो स्केल, therefore we can see only one dimension, therefore it is known as the 1 dimensional nanostructure। और जो 2 dimensional nanostructures है उसमें 1 dimension is in the nanoscale, 2 dimensions हम देख सकते हैं, इसीलिए it becomes the 2 dimensional nanostructure, and the example is the thin film। Thus we have seen the different things about the nano science or the nanotechnology or the nanostructures different। Okay, bye।